Welcome to We Learn Networks. This is session number 9 of subject e-marketing, and today we will cover the chapter STP strategy for e-marketing. The topics that we will cover in these sessions are market segmentation concepts, need for segmenting customers' markets for e-marketing, broad basis for segmentation, specific basis for segmentation, targeting strategies, and positioning and differentiation strategies. Here the chapter name is STP strategies for e-marketing, where STP stands for segmentation, targeting and positioning strategies adopted in e-marketing. It also deals with the various attributes required for effective marketing segmentations. It describes the type and nature of market/customers on the basis of demographic, physiographic and behavioral segments of e-marketing. These units will tell you how we can segment our markets, how we target our customers, and how we will make strategies for customer positioning. First of all, our first topic is market segmentation concepts. Let us have a brief overview of market segmentation. The market for any manufactured product is generally built using several segments. A market in any case is a collection of customers for a given product. The customers, the end users who make up a market are different with respect to buying manners. There are various factors added for the varying mindsets of customers, due to which fact many segments occur within a market. ये जो हमारी मार्केट होती है वो बहुत सारे सेगमेंट्स की बनी होती है, और जनरली जो हमारा प्रोडक्ट होता है वो भी बहुत सारे सेगमेंट्स से मैन्युफैक्चर्ड होता है. तो जो भी हमारी मार्केट होती है वो कलेक्शन होती है बहुत सारे कस्टमर्स की, जहां पे उनमें बहुत सारे बाइंग मैनर्स होते हैं. Market segmentation is important because buyers of a product usually do not belongs to a homogeneous groups. जो मार्केट ग्रुप्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं अपने कस्टमर्स से, क्योंकि ये जो सेगमेंटेशन होती है वो होमोजीनियस ग्रुप्स को बिलोंग नहीं करती. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. इसीलिए हमारी जो मार्केट सेगमेंटेशन होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमें करना, ताकि हम उन हेट्रोजीनियस ग्रुप्स को डिफरेंशिएट कर सकें. Marketers frequently split the markets into a number of sub-markets/segments to capture the diverse market for any product. ये जो हमारी मार्केट है हम उसको प्रोसेस करते हैं, और इस प्रोसेस को नाम देते हैं हम मार्केट सेगमेंटेशन. ये जो हमारी मार्केटर्स होते हैं वो हमारी मार्केट को बहुत तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं, बहुत तरीके से सेगमेंट करते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन. Thus, in simple words, market segmentation is the breakup or division of markets into similar groups of customers, each group reacting in a different way to advertisement, communication, quotation and other aspects of marketing fields. इसीलिए हम सिंपल वर्ड्स में मार्केट सेगमेंटेशन को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन वो प्रोसेस है जहां पे हम अपने मार्केट को ब्रेकअप करते हैं, डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ सिमिलर ग्रुप्स में जो कि कस्टमर्स के होते हैं, और ये जो कस्टमर्स होते हैं वो डिफरेंटली एक्ट करते हैं जैसे हमारा मार्केट सेगमेंटेशन या एडवर्टाइजमेंट होता है. According to Dave Chaffee, segmentation involves understanding the groupings of customers in the target markets in order to understand their needs and potentials as a revenue source, so as to develop a strategy to satisfy these segments while maximizing revenue. ये जो सेगमेंटेशन होती है ये इन्वॉल्व करती है बहुत सारे कस्टमर्स के ग्रुप्स को, ताकि हम एक मार्केट को टारगेट कर सके, ताकि हमें पता लग सके कि पोटेंशियल रेवेन्यू सोर्स
किस चीज से हमें मिलता है या फिर हम अपने रिवेन्यूज को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं. Every buyer has individual requirements. Marketers group customers into different market segments based on the common aspects. ये जो हमारी जितने भी बायर्स होते हैं उनकी एक इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट होती है. हर मार्केट ग्रुप के लिए इंडिविजुअल कस्टमर ग्रुप होता है और ये जो कस्टमर ग्रुप होता है वो डिफरेंट चीजें या अपनी कैपिटल बिहेवियर्स के साथ में डिफरेंटली एक्ट करते हैं. मार्केट सेगमेंटेशन इज डन टू अचीव सर्टेन प्रैक्टिकल पर्पसेस. और मार्केट सेगमेंटेशन सिर्फ कुछ पर्पसेस को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम्स. ये जो हमारे मार्केट सेगमेंटेशन हम करते हैं ये हमें हेल्प करती है कि हम किस तरीके से हमारे इम्प्लीमेंटेशन या डेवलपिंग करते हैं हमारे मार्केट प्रोग्राम्स की. Let us see the criteria on which a segment is considered valuable. The first criteria is identifiable. Segment must be measurable and easily identifiable. हमारे जो segments होते हैं वो आसानी से identifiable होने चाहिए, means उन्हें आसानी से हम identify कर सकें. Next is accessible. Segments must be reachable through communication and distribution channels. जो हमारी segments है वो reachable होनी चाहिए for communication. Next is sizable. Segments should be large enough to validate the resources required to target them. एक segment को इतना बड़ा होना चाहिए कि वो अपने validate sources को भी अपने अंदर या उनको target कर सके. Next is profitable. There is no use in tracing the segments that are sizable but not profitable. ऐसे segments हमें नहीं बनाने चाहिए कि वो sizable तो है पर उनमें से कोई profit generate नहीं होना. तो हमें segments में जो main characteristics देखनी है वो profitability है. Means अगर मैं कोई segment को divide कर रहा हूं तो वो profitable होना चाहिए. Unique needs. Segment must react differently to different marketing mixes. हर segment को different marketing mix के लिए differently act करना चाहिए. Next is durable. The cost of frequent changes should get minimized over a period of time by stabilizing the segments. ये जो cost होती है वो frequently changed होती है stabilized segments के through. And last is measurable. The potential of segments and effect of a specific marketing mix on them should be measurable quantitatively. की मीन्स जो पोटेंशियल है किसी सेगमेंट का वो मेजरेबल होना चाहिए. उसका इफेक्ट जो भी हमारी मार्केट पे पड़ता है या मार्केटिंग मिक्स पे पड़ता है वो हमारा मेजरेबल होना चाहिए क्वांटिटेटिवली. मीन्स नंबर्स में हम उन्हें मेजर कर सके हमारे सेगमेंट्स को. There are many advantages for market segmentations. Let us look the various advantages of market segmentation. It helps distinguish between efficient for different customer groups within a given market. यह हमें हेल्प करती है कि हम किस तरीके से डिफरेंट मार्केट ग्रुप्स या डिफरेंट कस्टमर ग्रुप्स को डिस्टिंग्विश करते हैं विद इन अ गिवन मार्केट. नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स प्रॉपर चॉइस ऑफ टारगेट मार्केट. ये फैसिलिटेट करते हैं कि किस तरीके से हम टारगेट मार्केट को प्रॉपरली चॉइस करते हैं. ये फैसिलिटेट करती है इफेक्टिव टैपिंग ऑफ द मार्केट. मार्केट की इफेक्टिव टैपिंग को ये फैसिलिटेट करती है. नेक्स्ट इज हेल्प्स शेप अप द नीड्स ऑफ टारगेट बायर्स एंड एलिसिट मोर प्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्सेस फ्रॉम देम. ये जो हमारी मार्केट सेगमेंटेशन है यहाँ पे हम स्पेशली शेप अप करते हैं कि टारगेट बायर्स की नीड्स क्या क्या है और उन नीड्स को हम फुलफिल करने की पूरी कोशिश करते हैं. नेक्स्ट इज हेल्प्स डेवलप मार्केटिंग प्रोग्राम्स ऑन अ मोर कन्वीनियंट लेवल एंड सुटेबिलिटी. हम अपने मार्केटिंग प्रोग्राम्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं कन्वीनियंट और सुटेबल वे में. नेक्स्ट इज helps in achieving specialization required in product distribution or sales,
प्रमोशंस एंड प्राइसिंग फॉर आइडेंटिकल कस्टमर ग्रुप्स। ये हमें हेल्प करती है कि हम किस तरीके से हमारे कस्टमर्स या फिर हमारे सेगमेंटेशंस या हमारी सेल्स है उसको स्पेशलाइज कर सके बाय वेरियस प्रमोशन एंड प्राइसिंग फैक्टर्स फॉर इंडिविजुअल कस्टमर ग्रुप्स। नेक्स्ट इज मेक्स मार्केटिंग एफर्ट मोर कॉम्पिटेंट एंड इकोनॉमिक। ये हमारी मार्केटिंग को बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेंट और इकोनॉमिक बना देता है। नेक्स्ट इज हेल्प आइडेंटिफाई एंड सेटिस्फाई द लेस सेटिस्फाइड सेगमेंट्स। जो हमारे सेगमेंट्स लेस सेटिस्फाइड है या हमारे जो मार्केट सेगमेंटेशन है वो उन्हें ज्यादा सेटिस्फाइबल और आइडेंटिफाइबल बनाता है। लास्ट वन इज customer and companies can choose each other and stay together with segmentation reaches a high complexity। यहाँ पे जो कस्टमर्स होते हैं और कंपनीज होते हैं उन्हें ऑल टुगेदर चूज करता है कि कौन सा सेगमेंटेशन किस कंपनी के लिए बेस्ट रहेगा। नीड फॉर सेगमेंटिंग कस्टमर मार्केट्स फॉर ई मार्केटिंग। क्या जरूरत है हमें मार्केट को सेगमेंट करने की या कस्टमर्स को सेगमेंट करने की। एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑनलाइन कस्टमर्स हैव डिफरेंट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स नीड्स एंड बिहेवियर्स कंपेयर्ड टू इट्स ऑफलाइन कस्टमर्स, हैंस they may require different approaches to segmentation and targeting. Organizations using internet as a key aspect of e-marketing needs to target those customer groupings with the highest possibility to access, choose and buy online। ये जो हमारी ई मार्केटिंग प्लानिंग कंटेक्स्ट है यहाँ पे हम मार्केट्स को बहुत सारे सेगमेंट्स में एनालाइज करते हैं, पर जब हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन किसी कस्टमर को ऑनलाइनली टारगेट करती है तो उन कस्टमर्स की बहुत सारी डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ नीड्स होती है और कुछ बिहेवियर्स होते हैं जो कि ऑफलाइन कस्टमर्स के से हम उनको कंपेयर करते हैं। और जब हम इन ग्रुप्स को टारगेट करते हैं तो हम ये पॉसिबिलिटी ज्यादा देते हैं कि ये जो हमारे ऑनलाइन कस्टमर्स हैं वो बेस्ट सूटेड वे में किस तरीके से हम उनको टारगेट कर सकते हैं। इन एन ई मार्केटिंग प्लानिंग कंटेक्स्ट मार्केट सेगमेंटेशंस आर एनालाइज्ड टू एक्सेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो हमारी ई मार्केटिंग प्लानिंग कंटेक्स्ट है ये सेगमेंटेशंस को या सेगमेंट्स को बहुत ही ज्यादा एनालाइज करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एंड इट कैन बी डन इन मेनी वेज। द फर्स्ट वन इज current market size or values, future projections of size and the current and future market share within the segment। ये डिपेंड करती है करंट मार्केट साइज और वैल्यू पे। नेक्स्ट इज कंपिटिटर्स मेक मार्केट शेयर विद इन द सेगमेंट्स की हमारी मार्केट में कंपिटिटर्स के कितने ज्यादा शेयर्स हैं। और थर्ड है नीड्स ऑफ ईच सेगमेंट इन पर्टिकुलर अनमेट अनस्टेटेड नीड्स। हमें उन सेगमेंट्स को या उन नीड्स के लिए सेगमेंट बनाना चाहिए जो कि अभी तक अनमेट है या अनस्टेटेड है। एंड लास्ट वन इज ऑफर्स एंड प्रोपोजिशंस फॉर ईच सेगमेंट अक्रॉस ऑल द बाइंग प्रोसेसेस एज वेल एज कंपिटिटर्स ऑफर प्रोपोजिशंस। हम ऑफर्स और प्रोपोजिशंस को हर सेगमेंट में इंक्लूड करवाते हैं बाइंग प्रोसेस के। E-marketing strategies involves two highly interrelated phases. The first phase involves segmentation, targeting, differentiation and positioning, and the second phase involves the 4 P's of customer relationship management. ये जो हमारी e-marketing strategy planning है ये 2 phases में वर्क करती है। पहला जो फेज होता है वो होता है STP का और दूसरा जो फेज होता है वो होता है हमारी कस्टमर रिलेशनशिप्स के 4 P's का। तो मींस जब ये दोनों प्रोसेसेस या ये दोनों फेसेस इंटर रिलेशन में काम करते हैं तो हम इनको कहते हैं ये हमारी ई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लानिंग में हेल्प करते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ कस्टमर सेगमेंट्स दैट आर टारगेटेड ऑनलाइन इंक्लूड लार्जर कंपनीज, स्मॉलर कंपनीज, द मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर्स, customers who are brand loyal and customers who are not brand loyal. The large companies, an extranet could be produced to service these customers and increase their loyalty.
ये जो हमारी कंपनीज होती है, जो एक्स्ट्रा नेट होता है, ये प्रोड्यूस करता है बहुत सारी सर्विसेज को एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन को. नेक्स्ट इज स्मॉल कंपनीज. Large companies are traditionally serviced through sales representatives and account managers, but smaller companies may not warrant the expense of account managers. However, internet can be used to reach smaller companies more cost effectively. यहाँ पे जो हमारी स्मॉल कंपनीज होती हैं उनको बहुत ही ज़्यादा वारंटी या हमारे अकाउंट मैनेजर्स वारंट प्रोवाइड नहीं करते, और यहाँ पे जो इंटरनेट होता है स्मॉल कंपनीज में वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर्स. मेकिंग कस्टमाइज ऑफर्स टू द टॉप प्रॉफिटेबल 20% ऑफ कस्टमर्स may result in the repeat business and cross sales. जब भी हम अपने प्रोडक्ट के लिए कुछ भी एडवर्टाइज करते हैं या प्रमोट करते हैं तो 20% ऑफ द कस्टमर्स जो होते हैं ना वो हमारे रिजल्ट से बहुत ही खुश होते हैं और हमारे साथ में दोबारा से काम करने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट इज कस्टमर हु आर ब्रांड लॉयल. Services to appeal to brand logistics can be provided to support their role as advocates of a brand as suggested by Acker and Joachim-Mistel. ये जो हमारी कंपनी जो कस्टमर्स होते हैं जो ब्रांड लॉयल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपील करते हैं सेम ब्रांड के लिए, बार बार वो सर्विसेज में सेम ब्रांड्स को मांगते हैं. और ये जो हमारे कस्टमर्स हु आर नॉट ब्रांड लॉयल वो कन्वर्सली काम करते हैं ऊपर वाले फैक्टर के. कन्वर्सली इंसेंटिव्स, प्रमोशंस एंड अ गुड लेवल ऑफ सर्विस क्वालिटी could be provided via the website to try and retain such customers. कस्टमर्स को दोबारा रिटेन करवाने के लिए हम कस्टमर्स हु आर नॉट ब्रांड लॉयल को टारगेट करते हैं, इस ग्रुप की कैटेगरी को टारगेट करते हैं. Broad basis for segmentation. Before we check the broad basis for segmentations, let us see the first three types of market nature. हमारी जो पहली तीन तरीके की टाइप्स और नेचर होते हैं मार्केट के वो इन्वॉल्व करते हैं बिजनेस टू बिजनेस फॉर बिजनेस मार्केट, गवर्नमेंट टू मार्केट मीन्स बिजनेस टू गवर्नमेंट मार्केट एंड कंज्यूमर मार्केट मीन्स बिजनेस टू कंज्यूमर मार्केट. B2B market involves marketing of products to businesses, governments and institutions for use in their business operations as component of their business products or for resale. ये जो हमारे बिजनेस से बिजनेस मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है, मार्केटिंग प्रोडक्ट्स हैं, हम उनको एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में सेल करते हैं. और ये जो सेलिंग होती है वो हमारी प्रोडक्ट्स की कुछ भी हो सकते हैं, मीन्स कंपोनेंट्स को हम सेल कर रहे हैं उसको दोबारा रीसेल कर रहे हैं या फिर मॉडिफाई करके सेल कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें हमारी बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंटेशन में आ जाती हैं. गवर्नमेंट मार्केट इन्वॉल्व सप्लाइंग गुड्स एंड मटेरियल सर्विसेज टू द डिफरेंट गवर्नमेंट. द यूएस गवर्नमेंट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट बायर. The central and the state governments of India are also major purchasers. Businesses supplied to governments face certain unique challenges. ये जो हमारी गवर्नमेंट मार्केट होती है वो बहुत ही ज़्यादा गुड्स और मटेरियल्स को सर्विस प्रोवाइड करवाती है डिफरेंट गवर्नमेंटल सेक्टर्स में. तो ऐसी कंपनियां जो हमारा काम जो है वो गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ में करती हैं उन्हें कहते हैं बिजनेस टू गवर्नमेंट मार्केट. और ये जो यूएस गवर्नमेंट होती है वर्ल्ड की लार्जेस्ट बायर होती है. गवर्नमेंट एजेंसीज हैव सेवरल रूल्स फॉर सप्लायर्स रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन, पेपरवर्क एंड सो ऑन. कुछ जो कस्टमर एजेंसीज होती हैं उनमें बहुत सारे रूल्स या सेवरल रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है, जैसे कि सप्लायर्स के रिगार्डिंग क्या क्वालिफिकेशंस हैं या फिर हमने पेपर वर्क किया है या नहीं किया है एंड सो ऑन. दीज आर द मेनी एग्जाम्पल्स वेयर गवर्नमेंट एजेंसीज वर्क इन अ कॉम्बिनेशन. Broad segmentation basis. Segmenting markets can be broadly based on demographic, geographic, fashion or location. Psychographics and behaviors could regard to the product.
ये जो हमारी सेकेंड या सेगमेंटिंग मार्केटिंग है वो ब्रॉडली बहुत सारे डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक एंड लोकेशन एंड साइकोग्राफिक बिहेवियर्स को हमें शो करवाती है. Companies often combine bases and focus on categories such as demographic or geographic. Likewise, they can build segment using any combination of variables that suits like requirements. Let us now try to understand the four broad bases for segmentation in e-marketing. First one is globalized geographical basis. Here, markets are divided into different geographical units. The geographical location of online companies is not important to user because accessing websites as it makes no difference to them. But it is possible to organization having internet presence on most firms targeting specific cities. कुछ cities में जो हमारे students हैं वो फैले हुए हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं, कुछ स्टूडेंट बहुत सारी cities में हमारे students फैले हुए हैं, तो हर इंडिविजुअल ग्रुप को टारगेट करना, हर इंडिविजुअल प्रोसेस को टारगेट करना, ये हमारा जियोग्राफिकल लोकेशन में आता है. Even the largest multinational firms usually develops multi-segment strategies based on geographics. हालांकि जो हमारे लार्ज मल्टीनेशनल फर्म्स है वो अभी भी हमारे प्रोडक्ट्स को या हमारे सर्विसेज को मल्टीपल सेगमेंट स्ट्रेटजीज में डिवाइड करते हैं. नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन. ये जो जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन है प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का वो बहुत ही ज़्यादा गंदा है. But a book retailer such as Amazon.com will not want to reach customers in countries where it distributes its publication. ऐसा नहीं है कि जो हमारा प्रदीप है या फिर जो हमारा रिटेलर है लाइक Amazon, वो अपनी बुक्स या अपनी पैम्फलेट्स सबको बांटेगा जो उन्हें यूज़ कर रहे हैं. कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स या कुछ पर्टिकुलर स्टाफ मेंबर्स हम चुन लेंगे जो इस काम को करेगा. Next is demographic basis. It is based on age, income, purchasing power, profession, gender, family, and size and race and religion of the education. ये जो हमारी demographic basics होता है ये हमारी एज, इनकम, परचेजिंग पावर, प्रोफेशन, जेंडर और साइज को भी रेंज करते हैं. In early years on internet, the typical user was a young correction going persons on an employed person with a high income, a typical innovator. ये जो हमारे इंटरनेट होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं और ये जो टिपिकल यूजर्स होते हैं वो अच्छे से हमारी कॉम्पिटिटिव टेक्नोलॉजीज को यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज साइकोग्राफिक बिहेवियर्स. This groups customer based on their principles and lifestyles. कुछ जो ग्रुप्स होते हैं उनका कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल होता है, कुछ उनका लाइफस्टाइल होता है. तो ये जो साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन वेरिएबल्स होते हैं इनको हमने तीन चीज़ों में, तीन एलिमेंट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज डेवलप्ड नेशंस, सेकेंड वन इज इंटरेस्ट्स, एक्टिविटीज, व्यूज एंड प्रिंसिपल्स. तो जो फर्स्ट एलिमेंट है साइकोग्राफिक बेसिस का वो है प्रोडक्ट एलिमेंट्स. दूसरा जो है वो है लाइफस्टाइल एलिमेंट एंड द साइकोलॉजिकल एलिमेंट इज द लास्ट वन. नाउ व्हाट इज प्रोडक्टिव एलिमेंट्स या फिर प्रोडक्ट एलिमेंट्स क्या होते हैं? इट विल बी टोल्ड यू इन बिहेवियरल सेगमेंट्स. Attitudes and behavior varies, and attitudes are internal evaluations where people, products and other subjectives. They can be positive or negative, but the evaluation process occurs inside a process mind. Behavior refers to the what
a person physically does and why he is leaving me or not. तो ये सारी चीज़ें हमारी बिहेवियरल एस्पेक्ट्स में आती है जो बताती कि हमारे जो कस्टमर है वो किस तरीके से एक पर्टिकुलर सेगमेंटेशन के लिए बिहेव कर रहा है. Two commonly used behavioral segmentation variables are benefit sort and product usage. ये जो हमारे बिहेवियरल सेगमेंटेशंस होते हैं वो बहुत सारे वेरिएबल्स या दो वेरिएबल्स को कैरी करती है. दैट इज फॉर बेनिफिट सॉर्ट एंड प्रोडक्ट यूसेज. Our next topic is specific basis for segmentation. The four broad bases for customer market segmentation was demographic, geographic, psychographic and behaviors can other refined into specific segmentation variables such as purpose, internet, technical, savvy and or frequency of online ट्रांजैक्शंस. जितनी भी हमारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती है वो थ्रू बैंक होती है और कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम रास्ते में जारी करते हैं तो हमारा बिहेवियर खराब हो जाता है और हम उनसे लड़ पड़ते हैं. सो दैट दिस शुड नॉट बी हैपन इन द केस ऑफ ई मार्केटिंग. आफ्टर यूजिंग एनी फोर बेस इंडिविजुअल्स इन कॉम्बिनेशन a marketer profile segment members using specific functions. ये जो हमारे यूजर्स होते हैं यहाँ पे हमारे जो ई मार्केटर्स और यूजर्स होते हैं जो हमारे यूजर्स होते हैं वो क्या करते हैं यहाँ पे अपने टास्क को डिवाइड कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल after a website such as student.com creates a list of students who register at the site, it can use primary and secondary research to develop profiles that describes these students. ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इनको डिस्क्राइब करने के लिए हम इनकी लिस्ट बना लेते हैं student.com पे ताकि इनका जो प्राइमरी मेथड है रिसर्च का या सेकेंडरी मेथड है रिसर्च का उनको हम अच्छी तरीके से डेवलप कर सकें. In e-marketing, the four most important variables for further refining segments are purpose, internet usage, technical survey and frequency of online transactions. These are the four pillars of segmentations. Now let us study about purpose. E-marketers have to learn as to why customers logs onto their website or responds to an online advertisement. ये जो हमारे ई मार्केटर्स होते हैं यहाँ पे हमारी जो लॉग है कस्टमर के लॉग्स हैं उन्हें हम सेव करते जाते हैं अपनी वेबसाइट पे और जब कोई भी ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट हमें देना होता है तो हम इस लिस्ट को चेक करते हैं. Each customer's purpose may according to their processes and priorities. For example, one computer may enter into a gaming site for fun and time pass while other one may join as a member of his or her friend group. Next is internet access. Many companies segment customers on the basis of whether they have internet access or नॉट. हम कभी कभार मार्केट सेगमेंट में ये भी देखते हैं कि क्या हमारे पास में इंटरनेट एक्सेस है या नहीं है. इनफैक्ट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर ई मार्केटिंग एज द वेरी बेसिस ऑफ ई मार्केटिंग इज इंटरनेट एक्सेस. हम इंटरनेट एक्सेस जब तक हमारे पास में नहीं है हम अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को भी यूज नहीं होने देते. नेक्स्ट इज टेक्निकल सेवी और नॉट. This again is a very unpredictable and important variable. Important variable इस वजह से because even if the customers has internet access, they may be unable to use it, or one reason maybe they are not technically savvy or do not know how to use it. तो हमारे जो कस्टमर्स है वो दो तरीके से ही हमारी इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाता. पहला तरीका कि उसे आते ही नहीं हमारा इंटरनेट किस तरीके से चलाते हैं या फिर व्हाट आर द टेक्निकल सर्विस शी वाज फेसिंग. एंड जो दूसरा तरीका वो ये है कि हम नई नई टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं जो बताते हैं कि हमने आज नया या एक महीने में क्या क्या नया सीखा.
And last thing for the segmentation is frequency of online transaction. There is another important variable which segments market groups on the basis of online arrangement level. Internet users can broadly divided into three groups of basis of frequency of usage of what we study is known as behavioral segmentation. E-marketers may further want to know that features are commonly used, when exactly they are being used and so on. हमारी ई-मार्केटर्स को पता है कि किस तरीके से हम उसमें जा सकते हैं, उसकी कॉमन ड्राइव में जा सकते हैं और कैसे उसे चेंज कर सकते हैं. Targeting customers is our next topic. After reviewing many potential segments, e-marketers collects the best segment for targeting. हम एक बेस्ट मेथड सेलेक्ट करते हैं कि किस तरीके से हम अपने टारगेट को सेलेक्ट कर सकते हैं. For this reason, they review the marketing opportunity analysis and considers finding from SWOT analysis. SWOT is the analysis and decide on the best fit. Segments will be considered attractive if they are accessible through internet, sizable, growing and hold great profitable potential. वही सारी चीजें जो हमने लास्ट में बताई कि क्या क्या चीजें हम एक मार्केट ग्रुप में देखते हैं, तो वो ये सारी चीजें जो इन चीज को फॉलो करती है उसे हम कहते हैं टारगेटिंग स्ट्रेटजीज. E-marketing is specifically suited for two targeting strategies and in both message structure plays a vital role. ये जो हमारी ई-मार्केटिंग होती है वो स्पेशली दो टारगेट स्ट्रेटजीज को टारगेट करती है, स्पेसिफाई करती है, जहाँ पे दोनों ही आर्किटेक्चर्स या दोनों ही स्ट्रेटजीज में हमें एक मैसेज स्ट्रक्चर यूज करना पड़ता है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल रोल होता है. Niche marketing means it involves selecting one target segment and developing one or more marketing mixes to meet that segment's need. यहाँ पे हम एक segments को select करते हैं जो कि जहाँ पे target segments नहीं होते, तो उन target segments को target करने के लिए हम एक या एक से ज़्यादा marketing mix भी कर सकते हैं. Next is micro marketing. Also known as individual targeting, involves customizing all the part of marketing mix to a small number of people taken to execute. It can be target large markets of a person. एक person की large markets के लिए भी हम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं. Micro marketing, also known as individual targeting, involves customizing all or part of marketing mix to a small number of people taken to extreme. It can also be targeted mix for one person. ये जो हमारे माइक्रो मार्केटिंग होते हैं इन्हें हम इंडिविजुअल मार्केटिंग या इंडिविजुअल टारगेट भी कहते हैं, जहाँ पे हम कस्टमर्स को इंडिविजुअली ट्रैक या टारगेट करते हैं. नेक्स्ट इज मैसेज स्ट्रक्चर. Initial promotion communication through internet was via traditional advertising, seeing a computer website, seeing brands name and products information via banner advertising and the like. The www has enabled many new forms of communication through the social networking in recent years. This has enabled e-markets to make special practice of VLearn marketing, buzz marketing and guerrilla marketing. Practical other forms of are worth. ये जो हमारी ई मार्केटर्स होते हैं ये एनेबल करते हैं बहुत सारे वायरल मार्केटिंग को, बज मार्केटिंग को या गुरिल्ला मार्केटिंग को, या जो अदर टाइप ऑफ फॉर्म है मार्केटिंग की जिसे हम कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, उसे भी ये सोशल मीडिया नेटवर्क पे एक्सेस करवाती है. The next topic is positioning and differentiation strategies. Let us now see how positioning strategies helps to create a desired image for a company and its product in mind of a chosen user segment.
ये जो हमारी पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज होती है वो हमें ये हेल्प करवाते कि हम एक कंपनी की इमेज बना लेते हैं और उसके प्रोडक्ट्स को माइंड में सेट कर लेते हैं कि किस तरीके से हम जब भी एक प्रोडक्ट खरीदेंगे तो इस कंपनी से चूज करना है। ये सारी चीजें हमारी कौन बताती है? पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज। द कंसेप्ट इज वेरी सिंपल। टू बी सक्सेसफुल अ कंपनी मस्ट नॉट ओनली डिफरेंशिएट इटसेल्फ and its products from all others, but also position itself among its competitors in the public mind to carve out its own market price. Next is how we can differentiate, help in positioning. ये जो differentiation हम करते हैं मार्केट की वो हमें किस तरीके से positioning में help करती है? Differentiation वो पर्पस होता है जहाँ पे हम अपनी प्रोडक्ट्स का एक वैल्यूएबल और मीनिंग डिफरेंस डिस्टिंग्विशमेंट बनाते हैं फॉर कंपटीशंस। डिस्टिंग्विश इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग मीनिंगफुल एंड वैल्यूड डिफरेंसेस टू डिस्टिंग्विश द प्रोडक्ट फ्रॉम कंपटीशन। द कीज टू differentiating online business are the creation of distinctive and superior customer experience and the development of one-to-one relations with consumers. The real value added by internet is its ability to differentiate according to customer relationships and provide a unique experience for each customer. ये जो हमारी इंटरनेट होती है वो बहुत ही ज्यादा रियल वैल्यू ऐड कर देती है हमारी मार्केट में कि किस तरीके से हम अपने कस्टमर रिलेशनशिप्स को मैनेज कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। Differentiated online offerings are based on lower cost in acquiring and retaining online customers like retailers offering, airline offerings, financial services and mobile phone network providers. तो इन सारी चीजों में हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने कस्टमर के ग्रुप्स को ऑनलाइन डिवाइड कर सकते हैं। Now let us see how the 8 differentiation dimensions help in positioning. There are 8 different डिफरेंशिएशन डायमेंशंस जहां पे हम अपनी मार्केट्स को और कस्टमर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पहला जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है प्राइस पे। डिफरेंशिएटिंग ऑन प्राइस इज द मोस्ट कॉमन एंड इजीली अंडरस्टूड मेथड कि हम हमारे कस्टमर्स को प्राइस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन तरीका होता है कि हमारी मार्केट्स डिवाइडेड होती है प्राइस के ऊपर, मींस हाई सोसाइटी, मिड सोसाइटी या मिड लेवल सोसाइटी। तो इनके हिसाब से हमारी मार्केट ग्रुप्स भी डिफरेंट होती हैं। नेक्स्ट, फोकस डिफरेंशिएशन। इट इज द इजियर टू अचीव एज इट क्रिएट्स ऑटोमेटिक एडवांटेजेस ओवर अदर कंपनीज बिकॉज ऑफ एक्सपर्टाइज इन वन फील्ड। जब हम अपनी मार्केट्स को एक प्रोडक्ट के लिए फोकस कर देते हैं तो जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं उस एस्पेक्ट में तो उसे कहते हैं फोकस डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस, मींस जो हमारी ई मार्केटिंग कंपनी है वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है तो हम इस तरीके से फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट हम अपनी मार्केट्स को डिफरेंशिएट कर देते हैं। नेक्स्ट इज सर्विस डिफरेंशिएशन। Customers can be enhanced by 24-hour customer feedback through emails and also by ability to respond more swiftly to customer concerns. Home deliveries of groceries, online banking and security tradings are becoming increasing popular. तो किस तरीके की सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को, उस तरीके से भी हम अपनी मार्केट्स या कस्टमर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कस्टमर्स को होम डिलीवरी चाहिए या फिर कस्टमर्स को ऑनलाइन पेमेंट करनी है या फिर कस्टमर्स को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है। तो इस तरीके से सर्विसेज के ऊपर जब हम अपनी मार्केट को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये एक अलग डायमेंशन है हमारी मार्केट को डिफरेंशिएट करने के लिए। नेक्स्ट इज पर्सनल डिफरेंशिएशन। इन द पास्ट पर्सनलाइज्ड सर्विस एंड one-to-one relationship requires the interaction of skilled personals. Now, the internet allows companies to deliver their products and services through low-cost channels that automates the process and remove the expensive human elements. जब हम पर्सनलाइज्ड सर्विसेज को या फिर जो हमारे वन टू वन रिलेशनशिप्स हैं
उनके अकॉर्डिंगली हम अपने पर्सनल्स को या अपनी मार्केट्स या अपने कस्टमर्स को डिफरेंशिएट करते हैं, तब उस डिफरेंशिएशन को हम कहते हैं पर्सनल डिफरेंशिएशन, जहां पे हमारी जो मार्केट्स है वो पर्सनलाइज्ड सर्विस के ऊपर या वन टू वन रिलेशनशिप्स के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट इज चैनल डिफरेंशिएशन। इंटरनेट इज अ लोकेशन फ्री, टाइम फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिकेशन and also relationship channels. Internet provides highly specialized personal services and do-it-yourself websites. It is used to forge one-to-one relationships with individual customers, and internet expands companies' geographic range, business hours, and also the assortments of product available. तो किस तरीके से हम अपने चैनल्स के थ्रू, मीन्स किस तरीके से हम कस्टमर से कांटेक्ट कर रहे हैं, उन चैनल्स को जब हम अपनी मार्केट को डिफरेंशिएट करते हैं उससे हम कहते हैं चैनल डिफरेंशिएशन, जो कि मल्टीपल लेवल्स ऑफ ऑनलाइन चैनल डिफरेंशिएशन पे वर्क करती है। नेक्स्ट इज इमेज डिफरेंशिएशन। अ कंपनी कैन डिफरेंशिएट इटसेल्फ बाय क्रिएटिंग अ यूनिक एक्सपीरियंस कॉल्ड एक्सपीरियंसिंग ब्रांडिंग। जब हम अपने प्रोडक्ट को एक डिफरेंट ब्रांड नेम से डिफरेंशिएट करते हैं, या कंपनी जब एक ब्रांड एक्सपीरियंस करती है, तब हम उसे कहते हैं इमेज डिफरेंशिएशन। मींस एक कंपनी की जब मार्केट में एक अलग इमेज बन जाती है, कि मींस लाइक हम एग्जांपल ले डव शैम्पूज एंड पेंटीन शैम्पूज एंड वाटिका शैम्पूज, तो इनकी अपनी पर्टिकुलर इमेज है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स हैं। तो जब हम अपनी मार्केट ग्रुप्स को इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि हमारे कस्टमर्स जो डव शैम्पू यूज कर रहे हैं और हमारे कस्टमर्स जो पेंटीन शैम्पू यूज कर रहे हैं, तो ये हमारी डिफरेंशिएशन, इमेज डिफरेंशिएशन टेक्निक होती है। इसके बाद में कस्टमर डिफरेंशिएशन मींस इंटरनेट हमारी प्राइसिंग इंफॉर्मेशन को वाइडली अवेलेबल करवाता है सप्लायर्स, कस्टमर्स और कंपटीटर्स को। तो ये प्राइस को रिड्यूस कर देता है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स के लिए। मींस हमारे जो सप्लायर्स होते हैं वो भी एक तरीके के कस्टमर्स होते हैं, जो बायर्स होते हैं वो एक तरीके के कस्टमर्स होते हैं। मींस जितने डिफरेंट टाइप के हमारे पास में कस्टमर्स होंगे, अब हम अपनी रिलेशनशिप्स को, हम अपनी डिफरेंशिएशन को उन टाइप ऑफ कस्टमर्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज। कितने तरीके की डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज हम यूज करते हैं। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर ई मार्केटिंग, एंड स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज में इंक्लूड बीइंग द फर्स्ट टू एंटर इन द मार्केट, owing a product attribute, demonstrating product leadership, utilizing an impressive companies, supporting and distributing differentiating idea, and communicating the difference. And there can be many internet specific differentiation strategies, and some of them are customer tracking, seamless communications, greater relationship efficiencies, be aware of competitor pricing and potential customer savings. Now let us see how we can differentiate strategies are applicable. The first one is site environment and atmospheres. जो भी हमारी साइट का या फिर हमारी रिटेलिंग का एटमॉस्फेयर है, उस हिसाब से जब हम डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज को इंप्लीमेंट करते हैं तो उसे कहते हैं साइट एनवायरमेंट एंड एटमॉस्फेरिक्स. Atmospherics are the in-store ambience created by click-and-mortar retailers. Website can be differentiated by providing visitors and a positive environment to visit, searches and purchases and so forth. Next is make tangible and intangible. An online product or service cannot be seen except by an image or description. The goal is hence to make offerings seems more tangible by showing them in a realistic and customer-friendly manner using virtual tours, 3D images, product images enlargement and trial downloads and customer reviews. कि हम किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को टेंजिबल बनाते हैं, उनको मोर डिस्क्रिप्टिव बनाते हैं या लेस डिस्क्रिप्टिव बनाते हैं. मीन्स कि हम उसमें ज्यादा से ज्यादा इमेजेस ऐड करना चाहते हैं हमारे प्रोडक्ट में, या फिर कम से कम उसको
सिंपल रखना चाहते हैं। ये हम देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने कस्टमर्स को कस्टमर फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट इज बिल्ड ट्रस्ट। जब भी हम डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज कम बनाते हैं तो हमारे जो मार्केटर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट में आने चाहिए। जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उन्हें बहुत ही ज्यादा फेथफुल होना चाहिए। तो ट्रस्ट इज अ की issue on the internet since customers are expected to pay online and their information is tracked for personalized services or supply chain management। तो इसीलिए ट्रस्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए ऑनलाइन मार्केटिंग में। नेक्स्ट इज efficient and timely order processing। One of the strongest motivators of customers who make web-based purchases is the ease of ordering। कि किस तरीके से हम अपने प्रोसेसेस को या फिर हमारे प्रोडक्ट्स को प्रोसेस कर रहे हैं इन अ एफिशिएंट मैनर और इन टाइमली मैनर। की मींस कौन सा प्रोडक्ट पहले प्रोसेस होगा और कौन सा प्रोडक्ट बाद में प्रोसेस होगा। नेक्स्ट इज प्राइसिंग। Pricing, as mentioned as a method of differentiation, has come under scrutiny when products were first offered on the web. The differentiation methods has come under scrutiny। कि मीन्स जो प्राइसिंग है वो भी हमें इस तरीके से करनी चाहिए कि हमारे कस्टमर्स जो है वो हमारी साइट से अपने रिलेशंस को ना ब्रेक करे। प्राइस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉर डिफरेंशिएशन एंड पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज। एंड लास्ट वन इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कि हम किस तरीके से कस्टमर्स को मैनेज कर रहे हैं, किस तरीके की सर्विसेज हम उन्हें प्रोवाइड करवा रहे हैं और किस तरीके का रिलेशनशिप हम उनसे रख रहे हैं। ये सारी चीजें हमारी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज में आती हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज। जो पहली पोजीशनिंग स्ट्रेटजी आती है वो आती है प्रोडक्ट्स और सर्विस एट्रीब्यूट्स पोजीशनिंग। कि मीन्स हम किस तरीके से हमारी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के एट्रीब्यूट्स को पोजीशन करते हैं। एंड इट रेफर्स टू पोजीशनिंग ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फीचर्स। A patented product or processes such as Amazon iClick checkout process is an ideal basis for positioning. Next is positioning on the basis of technology. Shows that a firm is on the cutting edge. This attribute is especially important for online marketers. ये जो स्पेशल फीचर होता है, ये जो एट्रीब्यूट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ऑनलाइन मार्केटर्स के लिए कि हम किस तरीके की टेक्नोलॉजी अपनी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजीज या पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज में यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज बेनिफिट पोजीशनिंग is based on benefits that brand offers as against the competitors। competitors के लिए जो ब्रांड या फिर जो कंपनी है वो कौन कौन से बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड करवा रही है उसको भी हम पोजीशन करते हैं। नेक्स्ट इज यूजर कैटेगरी पोजीशनिंग रिलाइज ऑन कस्टमर सेगमेंट्स। ये जो हमारे कस्टमर्स की जब हम सेगमेंट्स बनाते हैं तो यूजर कैटेगरी पोजीशन उस पर डिपेंड करते हैं कि किस किस तरीके के हमने कस्टमर ग्रुप्स या कस्टमर सेगमेंट्स बनाए हैं। नेक्स्ट इज कंपिटिटर पोजीशनिंग फॉलो करता है कि किस किस तरीके के कंपिटिटर्स हमारे मार्केट में और हम किस तरीके से उन कंपिटिटर्स के से एडवांटेजेस ले सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड पोजीशनिंग प्रोवाइड्स one stop solution providing everything that a consumer needs in a particular product। जो प्रोडक्ट में एक पर्टिकुलर कस्टमर को नीड है वो चीज हम उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करवा देते हैं, इसे हम कहते हैं इंटीग्रेटर पोजीशनिंग। नाउ डू इट योरसेल्फ। दीज आर द क्वेश्चन दैट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। फर्स्ट वन इज डिस्कस टारगेटिंग स्ट्रेटेजीज इन ई मार्केटिंग and second one is there any need for segmenting customers and markets in e-marketing? Thank you and have a nice day.